إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال الله عز وجل في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال الله عز وجل في موضع آخر: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. رواه البخاري ومسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم رب زدني علما. بزرگان محترم، عزیزان ملت، اسلامی رشتے کی مائیں بہنیں، دینی ملی اسلامی بھائیوں اور عزیز بچوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، عظمت و بزرگی اور پاکیزگی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی لائق اور زیبا ہے، جو تنہا ہم سب کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے، جو ہر آن، ہر گھڑی اور ہر لمحہ پوری کائنات کی نگرانی فرما رہا ہے۔ کائنات کا کوئی گوشہ، کوئی خطہ جس کی بادشاہت اور حکمرانی سے الگ نہیں ہے۔ اس نے اپنے پیغام کو عام کرنے کے لیے اور اپنے بندوں تک پہنچانے کے لیے بے شمار اور لاتعداد انبیاء کرام کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ اپنا آخری پیغام، آخری قانون، آخری شریعت اور آخری کتاب نبی محترم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر اس دنیا فانی کے اندر اللہ رب العالمین نے بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے اس کے بندوں کے لیے جیسا پیغام پایا تھا بغیر کسی کمی اور بیشی کو اس کے بندوں تک پہنچا دیا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بڑھ کر اپنی 23 سالہ نبوی زندگی میں اللہ کی طرف سے ملے ہوئے احکام پر عمل پیرا ہو کر قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے بطور نمونہ چھوڑ دیا ہے۔ تمام انبیاء کرام پر درود و سلام ہو، بالخصوص
सैयदुल मुरसलीन इमामुल अंबिया खातिमुन नबिय्यीन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नाज़िल हो। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला अब्दिका व रसूलिका मोहम्मद। हज़रात गिरामी, आज दुनिया ग्लोबल विलेज की शक्ल में हमारे सामने है। जी हाँ, पूरी दुनिया एक छोटी सी डिवाइस में, एक छोटी सी मशीन में समा चुकी है। जदीद आलात हमेशा से निकलते आए हैं और ईजाद कभी भी ख़त्म नहीं होती या इसकी इंतहा नहीं है। लेकिन आज का दौर जो हम देख रहे हैं जदीद आलात से भरपूर है, मामूर है। सिर्फ दुनिया नहीं बल्कि हमारी ज़िंदगियां भी इन जदीद आलात से घिरी हुई हैं, हमारी ज़िंदगी भी मुहीत है। आज से अगर कुछ सदी पहले, अगर बल्कि कुछ सदी क्या, चंद दहाई पहले, 20-30 साल पहले, या कह लीजिए 80 साल 90 साल पहले, 80 और 90 साल पहले अगर किसी को आज की दुनिया के हालात और आज के सिलसिले में कुछ बयान करता तो यकीनन उसे पागलपन तस्वूर किया जाता। और आज जो कुछ हम देख रहे हैं, कर रहे हैं, जो इस्तेमाल कर रहे हैं और जिन चीज़ों से हमारा साबका पड़ रहा है, यकीनन उनके ज़हनो दिमाग में भी ऐसा कुछ नहीं होगा और ना ही उनके ख्याल में ये तस्वूर कुछ उनके ख्याल में होगा और ना तस्वूर उन्होंने किया होगा। जदीद आलात से हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं। उन जदीद आलात में कुछ तो ऐसे हैं जो सिर्फ हमारे फ़ायदे के लिए हैं और कुछ ऐसे हैं जिनमें फ़ायदे और नुकसान दोनों हैं और कुछ ऐसे हैं जिसमें सिर्फ नुकसान है। और याद रखिए, सिर्फ नुकसान जब कहा जाता है तो इसका ये मतलब नहीं कि उसमें कोई फ़ायदे की चीज़ है ही नहीं, ऐसा नहीं होता। बल्कि कोई भी चीज़, यहाँ तक कि शराब के सिलसिले में भी कुरान ने कहा कि उसमें कुछ तो फ़ायदा है, हाँ नुकसान ज़्यादा है, गुनाह ज़्यादा है। तो ये बात समझ लें कि कोई भी चीज़ गरचे हमारे फ़ायदे के लिए हो, हम उनमें अपने लिए मुनाफे देखें, गरचे हम उनके अंदर बेनिफिट्स देखें और लोग बताएं, माहिरीन बतलाएं, उसके बावजूद हमें यह तस्वुर नहीं करना चाहिए कि वो चीज़ें हमारे लिए नुकसानदेह नहीं। जदीद टेक्नोलॉजी में हम देखते हैं कि हमारे पास जो चीज़ है वो सोशल मीडिया एक है। सोशल मीडिया क्या है? एक ये सोर्स है और सोशल मीडिया के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। उनमें से फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, इसी तरह से यूट्यूब और ट्विटर और इस तरह से दूसरे मोबाइल, लैपटॉप और इन तमाम चीज़ें इसमें शामिल हो जाती हैं किसी ना किसी तरीके से। लिहाजा ये जो जदीद आलात हैं, ये जदीद इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ें हैं, ये हमारे लिए दोनों पहलू रखते हैं। ये सोशल मीडिया की बात अगर मैं करूं तो इसके अंदर दोनों पहलू हैं, मनफी पहलू भी है, मुस्बत पहलू भी है। हमारे लिए पॉजिटिव चीज़ें भी हैं, नेगेटिव चीज़ें भी हैं। जहां हमारे ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है वहीं पर हमारे अंदर और हमारे ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है। मुस्बत पहलू की अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया ने हमारे लिए बहुत सारे काम आसान कर दिए हैं। उनमें से मिसाल के तौर पर अगर इल्म और तालीम और ताल्लुम के मैदान में हम देखें तो आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले अगर हम इल्मी मवाद जमा करना चाहें, इल्मी मवाद का मुताला करना चाहें तो बाकायदा हमारे लिए लाइब्रेरी जाना या कहीं से किताबें मंगवाना ज़रूरी होता था। बाकायदा जाकर मशक्क़त करके, मेहनत करके और बाकायदा सफ़र तय करके, मीलों का सफ़र करके जाना पड़ता था। या अगर किसी आलिम दीन से या उलमा से हमें अगर बराह रास्त डायरेक्ट अगर बिला वास्ता डायरेक्ट अगर हमें फ़ायदा उठाना रहता था, इस्तिफ़ादा करना था, तो खुद जाकर के हम सफ़र करके उन उलमा तक पहुँचते या उन उलमा को खर्च देकर या उनके वक्त और सफ़र की सोहबतों को बर्दाश्त करके उन्हें आना था। उसके बाद हम उनसे खातिर खा इस्तिफ़ादा कर सकते थे। लेकिन आज इस सोशल मीडिया ने हमारे लिए इस चीज़ को बिल्कुल आसान कर दिया है। एक क्लिक पर आप उलमा और दुआत से, मुबल्लिगीन से सारी चीज़ें हम ले सकते हैं, इस्तिफ़ादा कर सकते हैं।
हम यहाँ हो वो मीलों दूर, हजारों किलोमीटर दूर अगर हो तब भी हमें फायदा पहुंचा सकते हैं और हम इस्तेफादा कर सकते हैं। या इसी तरह से किताबों का अगर मामला हो, मोटी मोटी किताबें, ज़ख़ीमी किताबें, यहाँ तक कि जिनको उठाना, जिनको देखना, जिनकी सफ़ागर्दानी करना हमारे लिए आसान नहीं, मशक्क़त नहीं, जिन उलमा ने अपनी पूरी ज़िंदगी उन किताबों की तहरीर, उन किताबों की तहलीफ, उन किताबों की तसनीफ में गुजार दी, 40 साल जिंदगी, 50 साल जिंदगी, हम उन किताबों को एक क्लिक पर हमारे सामने हम हाजिर कर सकते हैं। उस वक्त जब अगर कोई किताब गुम हो जाती, जल जाती या किसी तरह से वो ज़ाया हो जाती तो उन किताबों को दोबारा हासिल करना बड़ा मुश्किल था, यहाँ तक कि दोबारा लिखना पड़ता था, दोबारा तसनीफ और तालीफ का काम करना पड़ता था सिरे से। लेकिन आज अगर हमारे पास ज़ाया भी हो जाए किताबें, यहाँ तक कि हम अगर डिवाइस में रखे हो, मेमोरी में रखे हो, स्टोरेज में रखे हो, मोबाइल, लैपटॉप और टैब वगैरह में रखे हो, अगर डिलीट हो जाए फिर एक क्लिक में हम उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारी सहूलियात हमारे पास मौजूद है, ये सारी सहूलियात मौजूद है। इसी तरह से और भी किसी खबर के बारे में मिसाल के तौर पर कहीं कोई वाक़या पेश आया, उसकी जानकारी के लिए हमें तकरीबन महीने लग जाते थे मालूमात हासिल करने के लिए। न्यूज़ आए, न्यूज़पेपर हो या इसी तरह से न्यूज़ जो चैनल्स हैं, जो अगर रेडियो वगैरह की शक्ल में जो चीज़ें पाई जाती थी, उनके तवस्सुस से और उन सोर्सेस के जरिए से हमें ये चीज़ें मालूम होती थी। लेकिन आज हम फौरन यूट्यूब पर क्लिक करें और सारा वाक़या, एक नहीं बल्कि कई वाक़यात और कई माहिरीन के जरिए से हमें वो सारी चीज़ें मालूम हो जाती हैं। ये मुस्बत पहलू है। अगर हम बात करें तो और भी मुस्बत पहलू निकल कर सामने आ सकते हैं। लेकिन अगर हम इस सोशल मीडिया को देखें तो हमारे लिए नेगेटिव इम्पैक्ट भी हमारे ऊपर इससे बहुत पड़ा है, बहुत ज्यादा इसका मनफी असर हुआ है। अगर उन असरात की बात करें तो एक खुतबे ये नाकाफी होंगे, लेकिन चंद चीजें मैं आपको बताता हूं। जैसा कि मौजू है खलवत के फितने और टूटते रिश्ते, इसने हर शोबे में और हर पहलू से हमारे लिए मनफी असर छोड़ा है और बाकायदा ये छोड़ रहा है असर। और इसका कितना नुकसान हुआ है या कितना नुकसान होने वाला है, इसका असल माना में अभी इसका अंदाजा नहीं किया जा सकता, तस्वुर नहीं किया जा सकता, क्योंकि अभी हम सोशल मीडिया के घेरे में आ रहे हैं। आना हमने शुरू किया है या कुछ लोग आ चुके हैं, एक जनरेशन भी अभी मुकम्मल तौर पर इसके झांसे में नहीं आई है। अब अगर 20 साल, 30 साल या 50 साल या कह लीजिए एक सदी के बाद कितना नुकसान इसने पहुंचाया है, अगर अंदाजा लगाना हो तो तकरीबन 50 साल या एक सदी 100 साल लगेंगे इसका सही अंदाजा लगाने के लिए। लेकिन जो असरात हम देख रहे हैं और जो माहिरीन और रिसर्च स्कॉलर्स बता रहे हैं, उनकी अगर हम बात करें तो यकीनन इसने हर शोबे में बहुत ज्यादा मनफी असर छोड़ा है और छोड़ रहा है, जिसको हम जानते भी हैं, बाज़ चीजों से अनजान हैं। जी हाँ, ये अगर हम बात करें तालीम और ताल्लुम के मैदान में तो इसने जहां कारनामा अंजाम दिया है, बेहतरीन कारनामा, वहीं पर तालीम और ताल्लीम से इसने हमें दूर भी रख दिया है। कोई इस तरह से हम बाज़ चीज़ों को याद करना चाहते हैं, बाज़ चीज़ों को देखना चाहते हैं, बाज़ चीज़ों को नोट करना चाहते हैं, बाज़ चीज़ों को महफूज करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास ये होता है कि मोबाइल में तो है ना, सोशल मीडिया में तो कभी भी हम इसे हासिल कर सकते हैं। क्या करते हैं हम? हिफ्ज नहीं करते, याद नहीं करते, नोट नहीं करते, जब चाहा हमने उससे निकाल लिया, उससे इस्तेफादा कर लिया। हिफ्ज पर, तालीम और ताल्लुम पर आज बच्चों को अगर देखें तो उनका हिफ्ज बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है, बहुत ज्यादा। अगर आप चंद नंबरात की बात करें, फोन नंबर हो, घर का नंबर हो या इसी तरह एड्रेस हो, ये सारी चीजें हमें याद नहीं रहती, क्योंकि हमारे जहनो दिमाग में इतनी ज्यादा वो चीजें शामिल हैं, उतनी ज्यादा महफूज हैं कि गोया कि हम ये चीजें याद करना नहीं चाहते, या सोचते हैं एक क्लिक में तो सारी चीजें हमारे सामने आ जाएंगे, लिहाजा इन चीजों से हम महरूम हो जाते हैं। इसी तरह से हमारे पास जो किताबें होती थी, पहले उलमा बाकायदा इसको महफूज करते थे, स्टोर करते थे, इसकी हिफाजत किया करते थे और अपना माल और अपना सरमाया का एक खातिर हिस्सा उसमें लगाया करते थे। आज इन चीजों में हम अपना माल नहीं लगाते। किसी से आप कहें कि फलां किताब आप खरीद लो, फलां किताब अपने पास रख लो, नहीं, पैसे नहीं निकलते। उन्हीं चीजों की जगह अगर आप कहें कि लाख रुपए का मोबाइल
چند لاکھ روپے کا موبائل 50,000 60,000 80,000 تو یہ بالکل عام ہے. اگر لاکھ روپے کا موبائل 1.5 لاکھ کا موبائل ہو تو بالکل آسانی سے اسے خرید لیتے ہیں. جبکہ کتابوں کے سلسلے میں علماء کا یہ حال تھا کہ اگر کتابیں خریدنے کے لیے ان کو زمین تک گھر تک بیچنا پڑتا تو وہ بیچ کر کے کتابیں خرید لیتے تھے. اپنے ناشتے اور کھانے کے پیسے سے وہ کتابیں خرید لیتے تھے. یہ ہوتا تھا. یہ تعلیم و تعلم کے میدان میں اس نے بہت برا اثر چھوڑا ہے. یہی وجہ ہے کہ ماہرین نے یہاں تک کہ بعض ممالک جو ترقی یافتہ ممالک ہیں, جو سویلائزڈ ہیں, ان ممالک نے ان چیزوں پر پابندی لگائی ہے. جیسا کہ آئرلینڈ میں یہ پابندی لگائی گئی ہے کہ پرائمری اور سیکنڈری اسکول میں یہ چیزیں کسی کو نہیں دی جائیں گی. سوشل میڈیا سے دور, موبائل سے دور رکھا جائے گا. اسکولنگ میں انہیں نہیں دی جائے گی, یہاں تک کہ اسکول میں بھی نہیں, اور اسکول میں رکھ بھی نہیں سکتا موبائل. آسٹریلیا میں اگر رپورٹ کی مانے تو 2 سال پہلے 2024 میں 2024 میں یہ پابندی لگائی گئی کہ 16 سال کی عمر سے پہلے کسی کو سوشل میڈیا سے استفادے کا کوئی بھی چانس نہیں دیا جائے. جی ہاں, 16 سال کی عمر سے پہلے کوئی استفادہ نہیں کر سکتا سوشل میڈیا سے. یہ نہیں کہ اسکول کے دائرے میں, کالج اور یونیورسٹی میں, بلکہ یہ وہاں پر قانون نافذ کیا گیا تھا کہ کوئی بھی 16 سال سے پہلے پورے ملک میں 24 گھنٹے میں کبھی بھی وہ سوشل میڈیا میں وقت اپنا گزارے گا نہیں. کیوں؟ اس کے بہت سارے اسباب ہیں, بہت سارے ماہرین نے بیان کیے ہیں. ایک یہ کہ ڈوپامائن ایک مادہ نکلتا ہے جو ہمارے دماغ میں چڑھتا ہے, اور وہ مادہ ایسا ہے کہ گویا کہ ایک نشہ پیدا کرتا ہے. جی ہاں, جب ہم آدھے گھنٹے 1 گھنٹے کسی ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو ہمارے دماغ میں ڈوپامائن نام کا ایک مادہ پیدا ہوتا ہے, اور اس کے ذریعے سے وہ چیزیں جو ہم نے دیکھی ہیں اسی کی طرف وہ فوکس کرتا ہے, اسی پر وہ اس کا فوکس ہوتا ہے, جس کی وجہ سے ہم 1 گھنٹہ 2 گھنٹے اور چند گھنٹے گزارنے کے بعد پھر ہمیں ایسا ہوتا ہے کہ وہی چیزیں چاہیے, بار بار وہی چیزیں چاہیے. اگر ہمیں نہ ملے تو معاف کیجئے گا, آج اگر کسی نشہ آور چیز کا نشہ جس طرح سے ہوتا ہے, شراب کا نشہ, ڈرگز کا نشہ, کوکین کا, افیون کا, اور اسی طرح سے جو دوسری چیزیں ہیں, دوسری اشیاء ہیں, ان چیزوں کا نشہ جس طرح سے اگر ایک نشہ کرنے والے کو یہ چیزیں نہ دی جائے تھوڑے وقت کے لیے, جس طرح سے وہ پریشان ہو جاتا ہے, اندر سے آواز آتی ہے شراب یا اسی طرح سے ڈرگز, اس طرح سے آواز آتی, جب تک نہ ملے وہ بے چین رہتا ہے, مضطرب رہتا ہے, پریشان رہتا ہے. اسی طرح سے اگر اس کی لت لگ جائے, جی ہاں, اگر ایڈکشن لگ جائے اور باقاعدہ اس کی لت لگ جائے تو معاملہ یہ ہوتا ہے جب تک کہ اسے موبائل نہ دے دیا جائے تب تک اس کا دل پریشان اور دماغ بے چین ہوتا ہے. آج ہم دیکھیں اس کو اپنے اندر دیکھیں, بچوں کے اندر دیکھیں, بڑوں کے اندر دیکھیں. آج یہ سوشل میڈیا, یہ کہہ لیجیے یہ چھوٹی سی ڈیوائس ہر ایک کے سامنے ہے, اسمارٹ فون ہر کوئی یوز کر رہا ہے, کیا بڑا کیا چھوٹا, کیا مرد کیا عورت, کیا علماء کیا عوام, تمام لوگوں کے ہاتھ میں یہ چیزیں ہیں, اور یہ چیزوں کا استعمال کیا جا رہا ہے. اس چیز کا استعمال کیا جا رہا ہے. سوشل میڈیا سے ہم لوگ جڑے ہوئے ہیں, منسلک ہیں, اور کہا جاتا ہے کہ آج کی دنیا میں یہ چیز بہت ضروری ہو گئی, بہت ضروری. خیر ضروری ہو یا نہ ہو, لیکن اس کا نیگیٹو امپیکٹ جو پڑ رہا ہے اس پر اگر ہم بات کریں تو یہ لت ایسی ہے, ایڈکشن ایسا ہے کہ اگر اس پہ پڑ گئے, اور اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ ہمارے اندر یہ لت ہے یا نہیں, ہمارے اندر ایڈکشن ہے یا نہیں, ہم اس میں ہم گھرے ہوئے ہیں نہیں, تو آپ اپنے موبائل کو آدھے گھنٹے کے لیے 1 گھنٹے کے لیے دور رکھ دیں, اپنے آپ سے دور رکھ دیں, یا چند گھنٹوں کے لیے آپ دور رکھ دیں. پھر دیکھیں آپ کا ذہن کہاں جاتا ہے, تو اس موبائل کو ڈھونڈنے کے لیے جا رہا ہے یا نہیں. یقین مانیے چند منٹ گزریں گے, بعض لوگ چند منٹ میں بار بار چیک کرتے ہیں, کوئی نوٹیفیکیشن تو نہیں آیا, واٹس ایپ پہ کسی کا میسج تو نہیں آیا. سبحان اللہ, بات یہاں تک پہنچ گئی ہے, اس میں ساری چیزیں شامل ہو جائیں گی. فیس بک پر, اسی طرح سے واٹس ایپ پہ, یا اگر دیکھیں ٹویٹر پر کوئی ٹویٹ کیا ہو, یا اسی طرح سے اگر یوٹیوب پر کوئی شارٹ ویڈیو, ریل, یا اسی طرح سے کوئی ویڈیو اگر اپلوڈ کیا ہو, تھوڑی دیر میں بار بار, کوئی کام نہیں ہے. اور ایسا کہ یہ جو لوگ کاموں میں مصروف نہیں ہیں, بیکار لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, بلکہ جو لوگ کام ہیں ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ بار بار وہ دیکھتے کتنے لائکس آئے, کتنے کمنٹس آئے, کمنٹس میں لوگوں نے کیا کیا کہا ہے, کتنے لوگوں نے اس کو فارورڈ کیا ہے, کتنے لوگوں نے کتنے لوگوں نے ریسینڈ کیا ہے, کتنے لوگوں نے کیا جواب دیا ہے. یہ تمام چیزیں بار بار ہم دیکھتے ہیں, منٹ 2 منٹ میں ہم یہ چیزیں دیکھتے رہتے ہیں.
और फला को बताते भी रहते हैं, दूसरों को बताते भी। इतनी बुरी लत है ये, इतना बड़ा एडिक्शन है कि इसमें पढ़ करके हम अपनी दुनिया भी बर्बाद कर रहे हैं और आखिरत भी बर्बाद कर रहे हैं। जी हाँ, दुनियावी एतबार से भी ये नुकसानदेह है और दीनी एतबार से भी। इसी तरह से अगर देखें वक्त का जिया इसमें कितना है, तो ये सारी चीजें उसमें आ गई हैं कि जो वक्त हम हिफ्ज में लगाते थे, जो वक्त कुरान की तिलावत में लगाते थे, जो वक्त नवाफिल के एहतिमाम में लगाते थे, आज कोई अगर खाली मस्जिद है, अगर अजान से 5 मिनट पहले या जमात से 10 मिनट पहले कोई आ गया हो मस्जिद के अंदर, 2 रकात अगर पढ़ भी ले, बैठने के बाद क्या करता है, सबसे पहला जो काम होता है मोबाइल निकाल करके देखता है नोटिफिकेशन, किसी का मैसेज तो नहीं आया, किसी को कॉल तो नहीं करना है। या इसी तरह से 5 मिनट पहले 5 मिनट अगर हमारे पास होते थे तो होता क्या था, हमारे बुजुर्गों के पास, हमारे इस्लाफ के पास होता यह था, कुरान की तिलावत शुरू कर देते थे, जिक्र व अज़कार में वो मगन हो जाते थे, मसरूफ हो जाते थे। आज क्या होता, 5 मिनट अगर हमारे पास हो तो 5 हम रील्स देख लेते हैं, 30 सेकंड के लिए, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, आधे घंटे की, ये तमाम चीजें हम करते हैं और वक्त बर्बाद करते हैं। अगर हम देखें कि इन तमाम चीजों से हमें हासिल क्या हुआ, तो जीरो, कुछ भी हासिल नहीं। हाँ, थोड़ी देर के लिए कोई चीज हमें हासिल हो सकती है और हर कोई अल्लामा बना बैठा है। हमारे पास तो तमाम चीजें आ गई, फलां की वीडियो हमने सुनी। इसी तरह से अगर आपसे हमारे पास कोई सवाल करने आता है, हाँ फलां सवाल का जवाब ये है, नहीं मैंने तो फलां वीडियो में देखा है, फलां की रील ये है, मैं आपको भेजाता हूं, ये सारे जवाब आते हैं। क्या है, फलां से आपने देखा है। ये चीजें सिर्फ वक्त की बर्बादी नहीं, दुनिया और आखिरत की बर्बादी, हमारे अकायद पर, हमारे नजरियात पर, हमारे अफकार पर भी ये नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहे हैं। हम जाने अनजाने में, न जाने किस अकीदे के हामिल हो जाएंगे। हम जो रील्स देखते रहते हैं, वीडियो देखते रहते हैं, सोशल मीडिया में हम मगन रहते हैं, कहीं ना कहीं हमारे ऊपर इन तमाम चीजों का असर होता है, जाने अनजाने में, हम जानबूझकर नहीं। अब उसी में इख्वानी फिक्र के लोग आ रहे हैं, उसी में राफिजी फिक्र के लोग आ रहे हैं, उसी में गलत नजरियात के हामिल हो रहे हैं, जमात इस्लामी के लोग आ रहे हैं, दूसरे तमाम जो हम रील्स देख रहे हैं, जो वीडियोस देख रहे हैं, और सोने से पहले, उठने के बाद सबसे पहले मोबाइल पर नजर, सबसे पहले वीडियो देखना, सबसे पहले इंस्टाग्राम चेक करना। और बाज लोग तो सुभान अल्लाह स्टेटस, न जाने सैकड़ों की तादाद में नंबर सेव होते हैं, सैकड़ों की तादाद में लोगों की स्टेटस देखने का वक्त मिल जाता है। लेकिन कहा जाए कुरान को तजवीद के साथ पढ़ना सीख लो, वक्त नहीं है। पूरे स्टेटस देखने के लिए वक्त है। और बाकायदा बाज लोग तो कमेंट भी करते हैं, आपका ये है, फला चीज है, आपने ये देखा है, आपने ये लिख दिया है, आपने ये कहा है, वगैरह वगैरह। ये तमाम चीजें कमेंट्स आप देखें, इसी तरह से दूसरी चीजें देखें। इन तमाम चीजों जो में वक्त जा रहा है, अगर उसी वक्त को हम दूसरी चीजों में लगाएं तो यकीनन हमारे लिए फायदेमंद है। और अगर बात करें बच्चों की बात करें, बच्चों पर कितना असर पड़ रहा, तो जैसा कि मैंने रिपोर्ट बतलाई अभी, ऑस्ट्रेलिया में और इसी तरह से आयरलैंड में और इसी तरह से कर्नाटक में भी शायद कोर्ट ने फैसला किया था 4 साल पहले कि बच्चों को ये न दिया जाए, या इसी तरह से स्कूल में मोबाइल ना लाया जाए, सोशल मीडिया से दूर रखा जाए। अगर बच्चों की हम बात करें तो खाना लुकमा हलक के नीचे कब उतरता है, जब सामने फोन हो, जब सामने मोबाइल हो, जब सामने वीडियो चल रही हो, रील्स हो। और बाकायदा लोग फख्र से, अपने वालिदैन फख्र से बताते हैं, हमारा बच्चा उस वक्त खाना नहीं निकलता जब तक कि उसके पास मोबाइल ना हो जाए। और हमारा बच्चा, दूसरा कहेगा हमारा बच्चा तो माशाल्लाह हमसे ज्यादा मोबाइल जानता है, स्क्रॉलिंग देखिए आप किस तरह से कर रहा है। ये फख्र करने चीज नहीं है, हमें अपना मुहासबा करने की चीज है। हमने जो अपना वक्त बच्चों के लिए लगाना था, अब यहाँ बैठे हुए हैं, बच्चे बैठे हुए हैं, हमने कहा ना इसने ग्लोबल विलेज बना दिया है। बिल्कुल दुनिया मुट्ठी में, जो स्लोगन है उसी तरह से दुनिया मुट्ठी में है, लेकिन हमारे जो रिश्तेदार है वो मुट्ठी में नहीं है। हम बैठे एक साथ हैं, एक कमरे में, एक सोफे पर हैं, एक रूम में हैं, लेकिन हमारे जो रिश्तेदार है सामने नहीं है। बाप बैठा है, माँ बैठी है, बहन है, भाई है, सब अपने अपनी दुनिया में मगन है, सब अपने सोशल मीडिया में मगन है। कोई लाइक कर रहा है, कोई कमेंट कर रहा है, कोई शेयर कर रहा है, कोई स्टेटस लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सब अपने अपने मगन है दुनिया में। और कोई बाप आवाज दे रहा है, बेटे को फर्क नहीं पड़ता, माँ पुकार रही है, बेटे को फर्क नहीं पड़ता, बच्चा रो रहा है, बेटे को फर्क नहीं पड़ता, बच्चा रो रहा है, माँ बाप को फर्क नहीं पड़ता। और ज्यादा अगर हो तो हमारे पास मोबाइल है, छोटे बच्चे के पास, सुभान अल्लाह, देख करके अफसोस भी होता है, कलेजे मुंह को आता है।
وہ یہ کہ 2 साल का बच्चा, 2.5 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, यहाँ तक कि 6 महीने के बच्चे के आगे भी मोबाइल रख देते और अपने काम में मशगूल। कहीं कोई बात कर रहे, माएँ बात कर रही हैं, याद रखिएगा ख़वातीन के लिए खास पैगाम ये है, बच्चों की तरबियत पर जो असर होता है वो माँ का ज्यादा होता है, माँ का ज्यादा होता है। बाप है बाहर है, ड्यूटी पर है, जॉब है, कहीं गल्फ कंट्री में है, बहरहाल वो बाहर है, यहाँ से वो टाइम नहीं दे सकता। अगर मोबाइल पे भी बात करे, 2-4 नसीहतें कर सकता है, लेकिन माँ हमेशा 24 घंटे बेटे के पास, बच्चे और बच्चियों के पास होती हैं। अगर वो भी मोबाइल और सोशल मीडिया में लग जाए तो बच्चों का क्या होगा। मैं हमेशा कहा करता हूं, बच्चों की तरबियत अगर न करनी है तो खुद वैसे बन जाओ। आप बच्चों को बार बार कहें मोबाइल मत देखो, रील्स मत देखो, शॉर्ट वीडियोस मत देखो, लेकिन आप खुद ही अगर वो चीजें देखेंगे तो फिर बच्चे क्या देखेंगे, क्या करेंगे। सोने के बाद, सोने से पहले जरूर बेड पर जाकर के हम चंद मिनट नहीं बल्कि चंद घंटे, कोई रात पूरी गुजार देते, पूरी रात गुजार देते। ये अगर हमने आदत छोड़ दी, यानी सोने से पहले वो नहीं देखना, हम बिस्तर पर गए फौरन मोबाइल को किनारे कर दें, ये 2 दिन 4 दिन हफ्ता भर आपको परेशानी होगी, लेकिन जो सुकून, जो इत्मीनान आपको मिलेगा वो अल्लाह नहीं बता सकता। जो इत्मीनान आपको मिलेगा इसको दूर रख करके, या सोकर उठने के बाद अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, या इसी तरह से जो दुआएं हैं वो पढ़ने के बजाय डायरेक्ट हम सबसे पहले नोटिफिकेशन देखते हैं, या इसी तरह से मैसेज देखते हैं। वो तमाम चीजों को छोड़ें। बाज लोग मैसेज करते हैं, जैसे रात में किया उन्होंने 12 बजे 1 बजे, अगर फजर के बाद कभी मैं जवाब दिया 7 बजे 8 बजे, तो कहते अरे रात में मैंने मैसेज किया था, मुझे क्या पड़ी है, और मैंने मोबाइल रखा है या ये किया, ये अपने फायदे के लिए, आपके फायदे के लिए, आपको जरूरत तो आप आ जाएं। नहीं, सवाल था बड़ा, ये था वो था मसला, और मसला क्या था, दोनों के दरमियान इख्तलाफ हो गया, 2 दोस्तों के दरमियान इख्तलाफ हो गया कोई इख्तलाफी मसले में, बस उसका जवाब चाहिए था, एक को दूसरे को पटखना था, बस जीतना था कि हाँ इस मसले में मेरा जो इल्म है वो ज्यादा है। इन तमाम चीजों की वजह से ये सारे फसाद हो रहे हैं। और अगर आखिरी बात की जाए, रिश्ते जो हैं माँ बाप से, बच्चों के रिश्ते हैं, माँ बाप का कहना नहीं मानते बच्चे। आज माँ की बागी हो जा रही बच्ची, बाप का बागी हो जा रहा बच्चा, ये तमाम चीजें यहाँ पर भी नेगेटिव इंपैक्ट इसका है। पहले भी हुआ करते थे लेकिन आज ज्यादा है। इसी तरह से मियाँ बीवी के दरमियान जो झगड़े हो रहे हैं, जो फैमिली कोर्ट्स के माहिरीन हैं, उन्होंने सर्वे किया और बताया कि जो तलाक, खुला और दोनों के दरमियान अनबन के मामला जो आए हैं वो 80%, सुभान अल्लाह, 80% ये सोशल मीडिया इसकी वजह है। 80%, अंदाजा लगाइए आप, ये जो सर्वे हुआ है उसके एतबार से, और ये तो अभी 3-4 साल पहले की रिपोर्ट है, अब क्या होगा पता नहीं, सुभान अल्लाह। ये तमाम चीजें क्या है, ये तलाक और खुला होता क्या है। रील्स हम देखते हैं 1 मिनट 2 मिनट, या सीरियल हमने देखा, आधे घंटे 1 घंटे का सीरियल देखा। अब शौहर ने देखा सीरियल में बीवी बहुत ही अच्छा किरदार निभा रही है, बाकायदा अपने शौहर की फरमाबरदार है, वो मुंह तक नहीं लगाती, जबान तक नहीं लगाती, जो कहे वो मानती है, उसके पास वक्त से पहले खाना तैयार आयरन करके रख देती है, इसी तरह से घर जाने से पहले पूछती है, अगर कुछ मना कर दे तो मान जाती है। अब वो शौहर जो देखा है अपनी बीवी को देखता है, अरे ये तो वैसी नहीं है, हमने जो देखा था वैसी तो नहीं है। अब इंपैक्ट क्या पड़ता है कि वो वाली औरत चाहिए जो वहां थी, वो वाली औरत चाहिए। इसी तरह से मेकअप वगैरह में देखता है उसको जितनी खूबसूरत, अपनी बीवी खूबसूरत नहीं लगती। इसी तरह से आप मान लीजिए बीवी अपने शौहर को देखती है, और उसी तरह से फिल्म में, किसी रील में, या इसी तरह से किसी शॉर्ट वीडियो में या वीडियो सीरियल में देखा है उसने, क्या देखा है, शौहर बड़ा फरमाबरदार है, यहाँ तक कि बीवी अपनी बीवी का हाथ बटाता है, घुमाने ले जाता है, अच्छे अच्छे खाने खिलाता है, कभी भी ख्वाहिश पूरी करने के लिए मना नहीं करता। अब बीवी क्या कहती है, वो तो ऐसा शौहर है। अब मेरा शौहर क्या है, कभी कहो तो पैसे नहीं है, कभी कहो तो हाथ टाइट है, कभी कहे तो ये मसाइल है वो मसाइल है। वो शौहर तो कभी ऐसा नहीं कहता, मेरा शौहर ऐसा क्यों है। बात तलाक तो नौबत आ जाती, तलाक की नौबत आ जाती। और देखिए याद रखिएगा, ये जो आधे घंटे 1 घंटे की वीडियो है, रील्स तो छोड़ ही दीजिए, इसमें पूरी जिंदगी नहीं बताई जा सकती। 50 साल 60 साल जिंदगी यहाँ अनबन हो सकती है, इख्तलाफात हो सकते हैं, ज़हन और दिमाग का इख्तलाफ हो सकता है, और फितरत का इख्तलाफ हो सकता है। उन चीज़ों को हम अपनी जिंदगी में फिट करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह ये सारे फसादात होते हैं। लिहाजा अगर हमें चाहिए तो हम अपना मुहासबा करें। और सोशल मीडिया यकीनन जरूरत की चीज हो सकती है कारोबारी लोगों के लिए। आज देखिए कैलकुलेट कर रहे हैं हम, किसी काम से भी मोबाइल उठाया हमने हिसाब करने के लिए, कैलकुलेट किया, उसके बाद ना चाहते हुए भी व्हाट्सएप पे एक बार क्लिक कर देते हैं,
واٹس ایپ ہم نے کھولا, ہاں میسج دیکھ لیا, کوئی خاص نہیں, پھر اس کو بند کیا, اس کے بعد بند بھی نہیں ہوتا, فیس بک پر چلی جاتی انگلی, فیس بک بند کیا, انسٹاگرام, ٹویٹر, اس طرح سے ایک لائک, دوسرے کمنٹ اور شیئر, ان تمام چیزوں میں نہ جانے کیا کیا ہم کر دیتے ہیں. اور اسی طرح سے بہت سارے اس کے منفی اثرات ہیں, بہت سارے نیگیٹو امپیکٹس ہیں. کچھ چیزوں کو میں نے بیان کیا ہے, سمجھ لیجئے, سمندر سے چند قدرے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں, ان سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کا منفی اثر کتنا پڑ رہا ہے. ہمیں خود بھی دور, ایسا نہیں کہ صرف بچوں کو دور رکھنا ہے, ہمیں خود بھی ان سے جتنا ہو سکے بس کام کی چیزیں ہم یہ کریں, اللہ سے تعلق بنائے رکھیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں, صحابہ کرام کی زندگیوں کو اپنے سامنے رکھیں, اور اس کے بعد اگر ان آلات کو ہم نے استعمال کیا تو انشاءاللہ العزیز ہم صحیح ڈگر پر ہوں گے, عقیدہ سلف پر ہوں گے, اور ہمارے جو معاملات ہوں گے, ہمارے جو اعمال ہوں گے, انشاءاللہ العزیز نامہ اعمال میں علیین میں لکھے جائیں گے, اور انشاءاللہ العزیز ہم دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیابی پانے والے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب کریم ہم تمام لوگوں کو جو نت نئے فتنے ہیں ان تمام فتنوں سے ہماری اپنی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین ہم تمام لوگوں کو سوشل میڈیا کے جو منفی اثرات ہیں ان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین ہمیں جب تک تو دنیا میں زندہ رکھ, دین اسلام پر قائم رکھ, اور جب ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر نصیب عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.